All right, it's now over to Radhika for all the latest on the Mumbai billboard tragedy. That's right. Over the last 24 hours, we spoke to and questioned several within the BMC, within the railways, to understand who gave permission to this illegal hoarding. In fact, we unearthed several documents and materials to understand this. There is a passing of the buck happening here. Of course, BMC said it is the railways, it is the railway police that had in fact granted that permission sometime in 2021, as a result of which this tragedy in fact took place. Of course, the railways on its part issued just a press release saying that yes, it was actually the railway police under the commissionerate in 2021 that gave this permission, and post which of course this tragedy did happen. However, an inquiry has been set up. But the railway is also going on to say at the same time that it was the onus and the responsibility of the ad agency to ensure that there was no damage. Of course, we did speak to several officials and several family members of the victims. Let's get you this report that we filed. A blinding dust storm that led to a fatal crash. This 100 feet tall massive hoarding crashed in Mumbai, striking a deadly blow to the families of 14 people who died in the hoarding collapse. The permissible limit for hoardings is 40 feet. Amidst a sudden dust storm and rain, at least 100 people found themselves trapped in the chaos. Shockingly, the hoarding was illegal. There was no civic body permission for it. The civic body claims they have objected to railway police not seeking permission for putting up hoardings on their land and have now ordered an audit post the tragedy. इसमें देखिए बीएमसी ने उस होर्डिंग के लिए और बाकी बहुत सारी होर्डिंग के लिए बीएमसी का परमिशन नहीं लिया जा रहा है. इसमें किसने प्रक्रिया फॉलो नहीं की, कहाँ पे कुछ लैप्स हो गए, उसका डिटेल इंक्वायरी होगी और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी. The railway police have claimed in a statement that they had started the process of removing the illegal hoardings, but before they could complete their work, it was too late. Police have filed a case of culpable homicide against the ad agency owner, who is a known history sheeter and had even been booked in rape case earlier this year. But while authorities are busy passing the buck, these families seek answers. Many of the deceased were sole breadwinners in their families. 5 लाख जाहिर करके कुछ होता है क्या? और 5 लाख जाहिर करने के बाद उसको भी 6-7 महीना जाएगा, उसका भी कुछ प्रोसीजर है. और वो बोर्ड 40 बाई 40 का परमिशन था, फिर भी 120 कैसा परमिशन किधर से मिला? और इतना होल्डिंग का पूरा पेट्रोल पंप झक गया है, इतना बड़ा होल्डिंग है वो. और होल्डिंग ने और सरकार ने कुछ जो इतना मौत हो गई उनके फैमिली का 5 लाख देके कुछ होगा नहीं है. As history sheeter Bhavesh faces charges, no accountability has been pinned on civic, railway or government official. The recurring question remains, where does accountability and responsibility lie when negligence costs innocent lives? With video journalist Bijoy, this is Radhika Ramaswamy for NDTV. In fact, in such tragic times, there are human stories that actually stand out. 14 people dead and many others injured, many still getting treatment in the hospital. In fact, I am standing with the relative of one such victim who unfortunately passed away in this tragic incident. He was a 23-year-old man, Sachin, who passed away yesterday. आप ये बताइए, ये हादसा कैसे हुआ? कल शाम को हुआ था और उनके बॉडी कब निकाली गई? आप पूरा डिटेल्स में बताइए. कल 4 बजे के लगभग आया. 4 बजे शाम को जब भी हुआ तो फिर 4 बजे से हम लोग को मालूम पड़ा 8 बजे रात को. तो मालूम पड़ा तो हम लोग ने कॉल किया तो कॉल 10 बजे तक चालू था. उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे 11 बजे, रात को 11 बजे जब भी वहाँ हम पहुँचे तो मालूम पड़ रहा है कि भाई पुलिस जाने नहीं दे रही थी वहाँ पे. फिर थोड़ा टाइम इधर उधर घूमने के बाद मालूम पड़ रहा है उधर काम करते थे ना? जी हाँ, वहाँ पे ऑलरेडी पेट्रोल पंप पे ऑन ड्यूटी पे ही था. दिन भर घर पे था, शाम को ड्यूटी पे चढ़ा था. तो फिर वहाँ पे मालूम पड़ता है कि भाई यहाँ से दूर रहो, जिसका भी बॉडी जा रहा है उसको दिखाया जा रहा है. हम लोग को रात को 2 बजे प्रशासन ने हटा दिया वहाँ से.
2 बजे हटाया तो हम लोग ने घर पे आ गए। तो कुछ 2 जन ने वहाँ रुके थे तो मालूम पड़ा भाई कभी भरोसा क्या है कि कभी भी निकल जाएंगे। तो सुबह 4 बजे बॉडी को निकाले हमारी 4 बजे जी। अगर उसके पहले निकाला गया होता तो बॉडी क्या मतलब बच्चा जिंदा था, वो बच सकता था, बचने का 100% चांस था उसमें। चांस था। और आपको ये तो पता ही होगा कि जो होर्डिंग था वो इलीगल था। यस मैडम, वो पंप वाले को भी पता है कि वो होर्डिंग अनलीगल था और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और पंप वाले को पता था और केस भी कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है कि चल रहा था होर्डिंग का कि अनलीगल है, इसको हटाया जाए। इतनी बड़ी जी, होर्डिंग के ओनर के अगेंस्ट एफआईआर किया है, लेकिन आपको लगता है रेलवेज, बीएमसी, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के भी अगेंस्ट होना चाहिए, क्योंकि उनके परमिशन से ही। हाँ, होना चाहिए मैडम, क्यों नहीं होना चाहिए? बगैर उनके परमिशन का क्यों कैसा होर्डिंग लगेगा? ये सब होना चाहिए। हाँ, तो आपके क्या डिमांड्स है अभी? हमारे डिमांड्स यही है कि जो दिया जा रहा है जो भी उनको मिले। जैसे आम पब्लिक मरी है तो ठीक है, साथ में ये वो भी बंदा है, मगर उनका डिमांड यही है कि जितना भी सरकार की तरफ से हो, उसको 4 महीने का बच्चा है, वो बच्चे को 23 साल का लड़का है, अकेला कमाने वाला शख्स था घर में वो, और 2 भाई उसके छोटे छोटे। माँ बाप का तो फिर जान ही रहे हैं आज के समय में क्या चल रहा है। पापा उसके रहते कमाने वाले, वो भी थोड़ा एज वाले हो गए हैं, मगर अकेला खर्चा चलाने वाला है। और वही आदमी एक्सपायर हुआ है जो उसके नीचे दब के मरा, ऑन ड्यूटी मरा है। वो भी ड्यूटी पे चढ़ा उसने, शाम को 3 बजे चढ़ा और 5:30-6 बजे का ये दुर्घटना है। सुबह 4 बजे लाश को मिला उसको। आप क्या एक्शन अभी डिमांड करेंगे? ऐसे बहुत और भी 13 लोग हैं जिसकी डेथ हुई। मैं मैडम ये अपील करूँगा कि अच्छी से अच्छी उनकी मदद की जाए सरकार की तरफ से, और जो जितनी मदद हो सके और उनकी मदद करें। अभी तो दुख की घड़ी है ये, जो बच्चा अपने बाप को नहीं पहचान पाया, 3 महीने का बच्चा, औरत के ऊपर क्या बीतती होगी। हम लोग तो अभी दुख की घड़ी में हैं, तो अभी हम कुछ नहीं बोल सकते कि क्या हम अपील करेंगे क्या नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। और अभी बॉडी हम लोग को मिल जाएगी, हम लोग उसका क्रियाक्रम करेंगे, उसके बाद क्या होगा वो आगे सोचेंगे। और कुछ आप सरकार से कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे मैम साहब कि जो भी उसका रहे वो तो है ही नहीं, यहाँ पे उसका कोई नहीं है, जितना भी रहे उसको बराबर मिल जाए पैसा। जो आप अपील किए हैं, सरकार जो अपील की है कि 5 लाख रुपए कुछ ऐसा, या उसका जो इंश्योरेंस है या और जो उसका क्लेम होता है उसको पास करवा दी जाए, यही अपील है हम लोग से। और ऑन ड्यूटी था उसको पेट्रोल पंप वाले भी देना चाहिए कुछ उनके बच्चे के लिए कि हाँ ठीक है ऑन ड्यूटी पे एक्सपायर हुआ। बाकी जो सरकार दे रही हो तो सरकार अपनी आम आदमी को भी दे रही है ना। जो पेट्रोल पंप के ओनर है वो सर भी उनको भी देना चाहिए कुछ कि हाँ भाई उसके बच्चे का और वाइफ के लिए कुछ तो लेके जाओ। All right, there you heard from the relatives of the victim, the deceased here. They are seeking compensation, they are seeking all the support and help, and also demanding action against government or railway officials who've been responsible for this. Of course, this is tragic. A 23-year-old man who had a 3-year-old child passing away. He was in fact on duty at that petrol pump when that particular hoarding came crashing down. Meanwhile, we also spoke to several other family members of deceased and some who were injured in the hospital as well. Let's listen in. आप कल वो पेट्रोल पंप में से आए थे, बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ? मैं 4 बजे के टाइम में काम ख़त्म करके आ रहा था, पेट्रोल मेरा ख़त्म हुआ था गाड़ी का, मैं पेट्रोल डालने के लिए आया। तो पेट्रोल जैसा डाल के हुआ ना, अचानक हवा वगैरह तेज़ चालू हो गया और बारिश गिरने लगा। मतलब बारिश गिर रहा है बोल के मैं बोला थोड़ा देर रुक जाऊँ साइड में बोल के मैं उधर बाजू में ये हो। तो उतने में जो है बाजू में जैसा मैं गाड़ी एक करके लगा के खड़ा ही रह गया, तो अचानक बहुत ज़्यादा हवा चलने लगा, तो अचानक वो होर्डिंग गिरने के जैसा लग रहा था। तो मैं और थोड़ा साइड हो और देखो तो सडनली गिर गया। और गिर गया तो उसमें 2 सेकंड के अंदर कुछ मालूम ही नहीं पड़ा अचानक। और आपको कब रेस्क्यू किया? तुरंत रेस्क्यू? उसके 10-15 मिनट के बाद में फिर मैं कैसा पत्रा वित्रा हटा के फिर मैं खुद आया था। फिर उसके बाद फिर लोगों भी और आए, फिर बाद में रेस्क्यू टीम फिर बाद में आई सब। आपके भाई का डेथ हुआ, आप बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ? वो मेरे भाई का वो था, गैस भराने गए थे, वो लाइन में लगे हुए थे, तभी वो ऊपर से गिरा। बारिश हल्का हुआ, बारिश होने के बाद वो गिरा, उसके ऊपर ही गिरा, ऑटो भी दब गया, वो भी खत्म हो गया। तभी इमीडिएटली उनको इधर लेके आए या नहीं? वो पुलिस वाले लेके आए, पुलिस वाले उधर जाने ही नहीं दे रहे थे। पुलिस वाले इधर लेके आए तो हम लोग फ़ोन किए तो फ़ोन पे स्विच ऑफ बता रहा था, तो पुलिस वाले बोले हॉस्पिटल जाओ, राजावाड़ी जाओ, वहाँ पर पता करो तो वहाँ पता चलेगा। तो हम लोग आए इधर, पता किए तो फोटो दिखाए तो बोले हाँ ये बॉडी है। गॅस भराने 5 लाखाचा पॅकेज जाहीर केला, त्या 5 लाखाच्या पॅकेजमध्ये आयुष्य होणार आहे का? तो आज आमचा भाऊ गेलाय,
आज मेरा भाई गया है, मेरा कज़न भाई गया है एक गांव का, उसका 10वीं की एग्ज़ाम दिया है और एक घर में ही है, तो 5 लाख का पैकेज में उसका पढ़ाई हो जाएगा क्या? वो घर काम करते हो, भाड़े के झोपड़पट्टी में रहते, 5 लाख के पैकेज में उनका क्या होगा? सरकार ने ये जाहिर करना चाहिए कि वो बच्चे लोग को कुछ सरकारी नौकरी दे दो, कुछ उनका भविष्य कुछ ना कुछ होना चाहिए। 5 लाख जाहिर करके कुछ होता है क्या? और 5 लाख जाहिर करने के बाद उसको भी 6-7 महीना जाएगा, उसका भी कुछ प्रोसीजर है। और वो बोर्ड 40/40 का परमिशन था, फिर भी 120 कैसा परमिशन किधर से मिला? और इतना होल्डिंग का पूरा पेट्रोल पंप जग गया है, इतना बड़ा होल्डिंग है वो। और होल्डिंग ने और सरकार ने कुछ जो इतना मौत हो गई उनके फैमिली का 5 लाख देके कुछ होगा नहीं है। वो बच्चे लोग को सरकारी नौकरी कुछ मिलना चाहिए। That's right, Gargi. We heard all of these victims' family members. Very, very unfortunate. Something that's unheard of. No accountability whatsoever. And as far as the FIR is concerned, FIR has been registered against the owner of this ad agency. In fact, this particular individual has multiple cases against him. 23 cases against him, including a case of rape. And there were multiple violations that he had committed, in the past, based on which his earlier company was blacklisted. Despite that, in 2021, the permission being given to him is something that is clearly unacceptable. But at this point, nobody really willing to take responsibility. BMC saying we didn't have the authority to give permission. Railway saying it was the previous commissioner who gave the permission to this particular individual to erect this hoarding. So yes, clearly individuals passing the buck, and as a result, it is the innocent lives that are getting lost because of negligence. Right. Thanks so much, Radhika, for joining us. And absolutely right that even if this Bhavesh Bhinde, who is the ad agency owner, had 23 cases, how was he allowed to, continue putting up these illegal billboards? Thanks so much for joining us there.